Okay, so good afternoon, all of you. So today we will be discussing about an entrepreneur's accessibility to finance, marketing, and technology. Like how do all these three factors influence the entrepreneurship venture? Okay, so look, as all of you know, I have already been saying this thing that finance is basically the blood of any business. Okay, it acts like a fuel for the business. Okay, without money, the business cannot run. Okay, and it's like the blood of the business. Okay, and finance is not a one-time activity. It's not that somebody gives me 100 crore rupees, I start up a venture, and after that I won't be needing money at all. Okay, businesses, they require funds on a continuous basis depending upon different activities, depending upon the duration for which you are in business, your nature of product life cycle, your competition. Okay, so all those things have to be taken into account, and they really influence that how much amount of finance would you require at different points in time. Okay, now look, why do you require funds? What are some of the very common reasons that a business may require funds? First is capital expenditure. That is, let us say you want money to buy your plant, machinery, land and building. Okay, now look, these involve heavy outlays. Okay, and these are long-term expenditure, and this is generally a one-time expenditure. If I buy a land today, I can't easily sell it, let us say 1 month later and say that, okay, now let me buy some other land. Okay, so generally these type of decisions are long-term decisions, and they involve significant outlay in terms of money. Okay, then you have working capital requirements. Now, look, working capital requirement means that the cash that you need for your day-to-day operations. Okay, so you need cash. Let us say, sales are happening on credit basis. At the same time, your production is going on, so you need to pay for raw materials. You need to pay for the salaries of your employees. Then so look, your day-to-day operations, they obviously need money. Okay, now look, working capital requirements. Look, it again depends upon what is your credit policy. Let us say if you are buying on credit and selling in cash, then in that case your credit requirements will not be much. Okay, but let us say you're buying in cash and you are selling on credit, then in that case you will be requiring a lot of capital. Then business growth and development. Now look, how do you plan to take a business forward? Okay, again, that has a crucial bearing on the amount of finance that you need. Okay, let us say you decide to acquire another company, okay, which can probably enhance your operations, or be another vertical for your business, or you probably think of acquiring your raw material supplier only, and you think that maybe by acquiring him you can do better in the business. So look, all these things, they require a lot of money. Okay, तो ऐसी चीजों के लिए पैसा चाहिए. या फिर मानो आप अभी एक प्रोडक्ट कैटेगरी में डील कर रहे हो, आप दूसरी प्रोडक्ट कैटेगरी में लॉन्च करना चाहते हो. लेट अस से यू आर डीलिंग राइट नाउ इन पीपीई किट्स, and you want to go into the sanitizer category and mask category also, so you require funds. Okay, if you want to come up with new products in the market, then पैसा चाहिए. बिना पैसे के आप नहीं आ सकते हो. ठीक है. Then unforeseen contingencies, ये तो अब बहुत ही कॉमन हो गया. We never know when the lockdown will be imposed, कब कौन सी contingency आ जाए, कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाए, लीगल पॉलिसी कैसे चेंज हो जाए, इंटरनेशनल मार्केट में क्या चेंज आ जाए. तो the things have become very very uncertain. Okay, so this uncertainty again calls for having some surplus cash with you. Then it can be for some speculative reasons. देखो, थोड़ा सा स्पेकुलेटिव मोटिव से भी बहुत बार बिजनेस थोड़ा सा पैसा अपने पास रखना चाहता है कि उसको कहीं पे भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखे तो वो पैसा लगा के इट कैन रीप प्रॉफिट्स लाइक दैट. Okay, so these are some of the things. Then factors determining the requirement of capital. अब क्या क्या factors पे determine होगा कि आपको कितना capital चाहिए होगा. ठीक है. तो look, first is the scale up of operation. So what have we decided to be? Have we decided to be a small scale enterprise, or have we decided to be a large scale enterprise? Look, there are definitions of them as per theory. Okay, you need to put in certain lakhs of rupees in your plant and machinery, equipment, land and building, and then only you are classified as a small enterprise or a large enterprise. Okay, तो अब भैया किस स्केल पे आप ऑपरेट करना चाहते हो, उस हिसाब से ऑब्वियसली आपका पैसा लगेगा. छोटे स्केल पे कम पैसा लगेगा, ज्यादा स्केल पे ज्यादा पैसा लगेगा.
लगेगा. Nature of business. Now look, nature of business is again a very very important thing. Let us say you want to go into retail. So retail might not need much of funds. Like I told you, all the sales will be happening in cash. But let us say you decide to be a manufacturing firm. Now a manufacturing firm requires a lot of cash, because you have to invest heavily in terms of fixed capital like land, building, machinery. Okay, and then your sales might also be happening on credit. So they require much more capital. Okay, like that. Then technique of production. Now look, अब टेक्निक पे बहुत कुछ डिपेंड करता है. मानो आपने जहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स हैं, ठीक है, वहां पे हो सकता है कैपिटल ज्यादा चाहिए हो. जहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन से काम हो रहा है, वहां पे हो सकता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट माइट बी हाई इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, बट अदरवाइज यू डोंट नीड टू मच ऑफ मनी फॉर ऑपरेशन. Then seasonal factors. Now look, all of you know that the Diwali season is there. Okay, so everybody knows that everybody is producing, and it is producing it in good quantity. Why? Because they know that everything that you produce, generally the sales are high during this time. Okay, during the wedding season, during Diwali time and all, people they buy very very easily. So you will see that this is ready-made market for biscuits, for mithaiya, for gifts and all those sort of things. So obviously अगर उस तरह की चीज है और आपको अपनी पता है कि डिमांड आगे आ रही है, तो आपको अकॉर्डिंगली अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए ज्यादा पैसा डालना पड़ेगा बिजनेस में. देन बिजनेस साइकिल. लुक अगेन, बिजनेस साइकिल के हिसाब से आपको समटाइम्स यू माइट रिक्वायर मनी. जब आपको पता है कि आगे जो है बूम आने वाला है, मतलब इकोनॉमी जो है वो ग्रो होने वाली है, हर चीज के लिए डिमांड बढ़ने वाली है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको ज्यादा पैसा चाहिए होगा. अगर आपको फ्यूचर में दिख रहा है कि रिसेशन आने वाला है, लोग डिमांड ही नहीं करेंगे, लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा. ठीक है, अगर इस तरह की चीजें आपको दिख रही है कि इकोनॉमी रिसेशन में जाने वाली, तो प्रॉब्लली आप पहले ही सोचोगे कि ज्यादा पैसा उठाने का फायदा ही नहीं, क्योंकि डिमांड ही नहीं होगी ज्यादा मार्केट के अंदर. Fine. So these are some of the things that you have to consider. Then after that, mode of operation. अब देखो, मोड ऑफ ऑपरेशन के अंदर आपको ये देखना है कि आप कितना काम खुद कर रहे हो. ठीक है, अगर आप Amazon की तरह हो और आप सोच रहे हो कि भैया मैं तो A to Z सब कुछ खुद करूंगा, ठीक है, वेयर हाउस भी मेरा अपना ही होगा, ऑनलाइन पोर्टल भी मेरा अपना ही होगा, जो डिलीवर करेगा प्रोडक्ट वो भी मेरा अपना ही होगा, ठीक है, पूरा लॉजिस्टिक्स भी मैं ही मैनेज करूंगा, सब कुछ मैं ही मैनेज करूंगा, Amazon कहते हैं. ठीक है, अगर आप Amazon टाइप वाली फर्म हो तो ऑब्वियसली योर कैपिटल रिक्वायरमेंट वुड बी वेरी वेरी हाई. ओके, बट जैसे आपकी बुक में ये एग्जांपल दिया हुआ है कि जो बाटा है ये खुद भी अपने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है, और जो बाकी ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स है वो भी अपने आउटलेट में रख के बेचता है, तो उसको ज्यादा फंड्स की इतनी जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो थोड़ा बहुत प्रोडक्शन अपना करता है और बाकी दूसरे ब्रांड्स का खरीद के अपने स्टोर में बेचता है, बिकॉज इट हैज अ गुड ब्रांड नेम. Then credit period offered and availed. I think this I have already explained to you. And then initial period expenses. देखो, अब initial period expenses के अंदर ये है कि बिजनेस में एंटर करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए. तो probably अगर आप ये सोच रहे हो कि आप एक वोडाफोन या जियो टाइप की कंपनी लॉन्च करने वाले हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनिशियल जो एक्सपेंसेस है वो इतने ज्यादा होंगे कि आपको बहुत ज्यादा पैसा डालना पड़ेगा बिजनेस में. बट प्रॉबेबली इफ यू आर थिंकिंग ऑफ लॉन्चिंग अ बिजनेस लाइक प्रोड्यूसिंग सैनिटाइजर्स, तो उस केस में ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं होंगे. शुरू में आप इजिली बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, so these are some of the things. Now look, there are different stages when we talk about this entrepreneurship का financing thing. ठीक है, तो जो बिजनेस है वो अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है. अभी अलग अलग स्टेजेस कौन से होते हैं, लेट अस जस्ट लुक एट देम. ठीक है बेटा, सबसे पहला है सीड कैपिटल स्टेज. सीड कैपिटल स्टेज कौन सा स्टेज है? सीड कैपिटल स्टेज वो स्टेज है जहां पे अभी बिजनेस आया नहीं है मार्केट में, आपके पास एक आइडिया है या आपके पास एक प्रोटोटाइप है प्रोडक्ट का, आपको पता है कि हाँ ये सक्सेसफुल होगा और आप इसको मार्केट में लेके जाना चाहते हो. ठीक है, अब उसको क्या करना है, उस आइडिया को या प्रोडक्ट प्रोटोटाइप को एक्चुअल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, उसके लिए चाहिए पैसे. तो अब पैसे कहाँ से आएंगे? तो ये होता है सीड कैपिटल स्टेज या फर्स्ट स्टेज ऑफ फाइनेंसिंग, जहां पे आप एक आइडिया को एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट कर रहे हो. ठीक है, आप देखो इसके अंदर कुछ ये जो स्टेज है ये बहुत रिस्की स्टेज होता है, क्योंकि हो सकता है इट इन्वॉल्व्स हाई रिस्क. अब पता नहीं आप जो कह रहे हो प्रोडक्ट वो एक्चुअली सक्सेसफुल हो ना हो. अनप्रूवेंट मैनेजमेंट है, अब आपने पता नहीं कौन से मैनेजमेंट के लोग लिए हैं, वो एक्चुअली परफॉर्म कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे. Then there is long term investment in the nature of equity capital. Obvious सी बात है, जो भी इन्वेस्ट करेगा इक्विटी कैपिटल के फॉर्म में इन्वेस्ट करेगा. फीजिबिलिटी ऑफ वीक कैश फ्लो, हो सकता है शुरू में आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करो और इतना अच्छा ना जाए वो मार्केट के अंदर.
ओके। देन लो लेवल ऑफ ऑपरेशंस एंड हैंडफुल ऑफ स्टाफ, हो सकता है शुरू में आपके ऑपरेशंस कम हो तो आपको थोड़े लोगों से काम चलाना पड़े, ठीक है। फिर आपको इस स्टेज में हो सकता है कि पर्सनल फाइनेंसिंग को भी रिजॉर्ट करना पड़े, मतलब अपना ही ज्यादा पैसा लगाना पड़े, ठीक है। और इस स्टेज में जनरली आपको पैसा कहाँ कहाँ से मिल सकता है बेटा, सबसे अच्छा तो होता है आपका खुद का पैसा, ओके। सो जनरली यू नो इन द इनिशियल स्टेज व्हेन द बिजनेस इज अनप्रोवन, नोबडी नोज अबाउट योर बिजनेस, द बेस्ट थिंग इज टू पुट इन योर ओन फंड्स नो मैटर हाउ मेनी फंड्स डू यू हैव, ठीक है। दूसरा है फ्रेंड्स और फैमिली, एक बार अपने खत्म हो जाते हैं तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं, अपनी फैमिली के पास पहुंच जाते हैं, आप पैसे दे दो, ठीक है, तो उनसे ले लो पैसे। फिर होता है बूट स्ट्रैपिंग। बेटा bootstrapping is nothing but you know when you basically use your own personal finances, मतलब this is using your own funds only, okay, and जब आप अपना पैसा डाल के अपने पर्सनल फाइनेंस को यूज करके, ठीक है, कंपनी के या फिर आप ये लगाओ कि ऑपरेटिंग रेवेन्यूज जो आपके बिजनेस या किसी और कंपनी से हो रहे हैं उनको यूज करके आप दूसरे फर्म में डाल रहे हो, अपने दूसरे बिजनेस में डाल रहे हो, तो उसको हम बूटस्ट्रैपिंग कहते हैं, ठीक है। देन इज क्राउड फंडिंग। आई थिंक क्राउड फंडिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू इन द लास्ट क्लास, जहाँ पे हम ऑनलाइन अपना प्रोजेक्ट अपना आइडिया डालते हैं और फिर अगर लोगों को सूटेबल लगता है तो वो उसके लिए डोनेट करते हैं, ठीक है। तो दैट वाज द थिंग। देन यू हैव एंजल और सीड इन्वेस्टर्स। आई थिंक इसके बारे में भी हमने लास्ट क्लास में बात किया था कि एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, बहुत ज्यादा रिच लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, ठीक है, और वो जनरली इन्वेस्ट करते हैं इफ यू गिव देम ओनरशिप इक्विटी और कन्वर्टेबल डेट, ठीक है। तो जो एंजल इन्वेस्टर्स है वो भी क्या करते हैं, अपना ही पैसा डालते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट की तरह, ठीक है। एंड they what are basically they interested in, they are interested in the profitability of that venture, ठीक है। वो उनको हेल्प भी करते हैं ग्रो करने में, एंड यू नो वट एवर एक्सपर्टीज दे कैन गिव, दे जनरली गिव इट। ये हमने डिटेल में लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। देन यू हैव गवर्नमेंट ग्रांट्स और स्कीम्स। देन लुक दीज डेज गवर्नमेंट इज आल्सो गिविंग अ लॉट ऑफ इम्पेटस टू स्टार्टअप्स, एज यू हैव सीन एंटरप्रेन्योरशिप तो जो है अब नया हमारा टैगलाइन बन गया है कि एंटरप्रेन्योर बनो, एंटरप्रेन्योर बनो। तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करी, जैसे स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री योजना, इनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। तो वहां से आपको पैसा मिलने की उम्मीद है इन द फॉर्म ऑफ लोन्स और एनीथिंग। एंड देन लास्ट इज वारंट्स। अब ये वारंट क्या होता है, देखो अब वारंट इज बेसिकली अ सिक्योरिटी। क्या है ये, एक सिक्योरिटी की तरह है विच ग्रांट्स द ओनर ऑफ द वारंट। ये क्या दे रहा है, किसको परमिशन दे रहा है, जो ओन कर रहा है वारंट उसको परमिशन दे रहा है द राइट टू बाय स्टॉक्स इन द इशुइंग कंपनी। क्या करेगा वो, क्या कर सकता है, जो इशुइंग कंपनी है मतलब जिससे उसने वारंट खरीदा है उसके अंदर वो क्या कर सकता है, उसके अंदर स्टॉक खरीद सकता है, शेयर्स खरीद सकता है एट अ प्री डिटर्मिन्ड प्राइस एट अ फ्यूचर डेट। किस प्राइस पे, एक प्री डिटर्मिन्ड प्राइस पे एक फ्यूचर डेट के अंदर। बेटा ये जनरली उन्हीं कंपनीज के लिए सक्सेसफुल रहता है जहां पे आपको पता है कि जो शेयर प्राइस है आगे फ्यूचर में वो बहुत ज्यादा होने वाला है और कंपनी आपको ऑप्शन दे रही है वो शेयर खरीदने का एट अ लोअर प्राइस, ओके। तो अगर ये आपको लालच दिखता है, आपको दिख रहा है कि मानो फ्यूचर के अंदर एक आपने स्टडी करा फाइनेंशियल्स कंपनी का सब कुछ, कि आपको लग रहा है कि जो शेयर है ना ये आराम से 1,000 रुपए पहुंच जाएगा, ठीक है, और आपने कंपनी को बोला कि आप एक काम करो मुझे वारंट्स इशू कर दो कि मेरे को दिख रहा है कि 5 साल बाद ना ये शेयर 1,000 रुपए का हो जाएगा, तो आप मेरे को एक वारंट इशू करके दो कि 5 साल बाद आई कैन बाय दिस शेयर लेटर से फॉर 100 रुपीज, ओके। हो गया आपका प्रॉफिट। आपको दिख रहा है 1,000 रुपए का वो शेयर होएगा और आपने कंपनी से ये लिखवा लिया कि आप ये शेयर मुझे 5 साल बाद 100 रुपए का बेचोगे, ओके। तो इट्स वेरी गुड। तो अगर हो जाता है 1,000 रुपए का तो आप आपके पास वारंट है, आप 100 रुपए में खरीदो शेयर और बेच दो मार्केट के अंदर 1,000 रुपए का। नहीं होता है तो देन यू कैन जस्ट लीव दैट, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू द सेकंड स्टेज ऑफ फाइनेंसिंग, दैट इज दी अर्ली स्टेज और दी ग्रोथ स्टेज फाइनेंसिंग। अब देखो इसमें क्या होता है, इसके अंदर बिजनेस जो है वो चल चुका है, ठीक है। अब उसको ग्रो करने के लिए, नया सेल्स और मार्केटिंग चैनल्स आइडेंटिफाई करने के लिए, नए कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए हमें पैसा चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, देयर इज हाई ग्रोथ पोटेंशियल। ऑब्वियसली बात है कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है तभी आप और पैसा लगा रहे हो। देयर इज गुड मैनेजमेंट। ऑब्वियसली यू हैव प्रूवन योरसेल्फ दैट यू आर सक्सेसफुल इन द फर्स्ट राउंड, देयरफॉर यू नो यू हैव अ गुड मैनेजमेंट टीम। देयर इज हायर रिस्क एंड हायर रिटर्न। हायर रिस्क और हायर रिटर्न तो रहेगा ही रहेगा एंटरप्रेन्योरशिप में। Investment will again be in the nature of equity share capital only, okay. Your main aim now over here is to stabilize the cash flow. That means you want to have a stable set of customers and investors जो है वो भी अब कुछ से मांगना शुरू कर देते हैं the management of the firm,
फाइन। अब यहाँ पे अगर आपको पैसा चाहिए तो आप किन के पास जा सकते हो बेटा? यू कैन गो टू वेंचर कैपिटलिस्ट। ओके, क्योंकि जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो स्मॉल और जो अर्ली फर्म्स होती हैं जिनका उनको ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है लॉन्ग टर्म में, उसमें वो इन्वेस्ट करने को तैयार होती है। ठीक है, सो आई थिंक वी हैव ऑलरेडी done about them in the last class. Okay, so you can just watch that video again if you want. Then next is private equity. Now private equity, like I told you, ये कौन से फर्म्स होती हैं? इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं जो अपना पैसा नहीं लगाती, रादर ये उधर उधर से हर जगह से पैसा मांग के लाती है और दूसरों का पैसा उठा के नई कंपनीज में लगाती हैं और वहां से प्रॉफिट कमाती हैं। ठीक है, अब देखो जनरली ये लोग भी क्या होल्ड करना चाहते हैं, ये इक्विटी स्टेक ही होल्ड करना चाहते हैं, एंड दे इन्वेस्ट ओनली इन प्राइवेट कंपनीज। दैट इज व्हाई द नेम वाज प्राइवेट इक्विटी, इफ यू रिमेंबर। ओके, दीज कंपनीज शुड नॉट बी लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज. So these are some of the things. Okay, then next what you can have is you can go for strategic alliance. Strategic alliance क्या होता है? Joint venture acquisition या M&A. देखो बेटा, स्ट्रैटेजिक अलायंस के अंदर आप क्या कर सकते हो? यू नो, बेसिकली स्ट्रैटेजिक अलायंस के अंदर दो या दो से ज्यादा फर्म्स इकट्ठे आ रही हैं, चाहे वो दूसरे को एक्वायर कर ले या वो 50-50 स्टेक में आ जाए, जैसे भी उनको आना है, दैट इज देयर विश। ठीक है, तो वो साथ में आती है, एंड द मेन गोल इज दैट यू नो, जो एक फर्म की कॉम्पिटेंसीज है उसका फायदा दूसरे फर्म को हो, और जो दूसरे फर्म की कॉम्पिटेंसीज है उसका फायदा फर्स्ट फर्म को हो। ठीक है, तो let us say you are a car manufacturer, like I will tell you about China. ठीक है, अब अगर चाइना के अंदर आप जाओगे ना, चाइना ने एक पॉलिसी बना रखी है सारे ऑटो मेकर्स के लिए कि अगर आपको चाइना के अंदर जाके गाड़ियां बेचनी है ना, सो दी ओनली वे यू कैन एंटर इज वाया जॉइंट वेंचर। इसका मतलब क्या है? अगर आप देखो इंडिया में देखते हो, इंडिया में जनरल मोटर्स इज जनरल मोटर्स, ओके, Volkswagen is Volkswagen. बट अगर आप चाइना में जाओगे ना, चाइना के अंदर Volkswagen will not be Volkswagen. It can be something like Volkswagen Shanghai Limited. तो वहां पे क्या होता है, वो ना 50-50 जॉइंट वेंचर में एंटर करते हैं। वो ये कहते हैं कि आधा पैसा तुम्हारी फर्म का होगा, आधा पैसा हमारी फर्म का होगा, मॉडल्स जो प्रोड्यूस होंगे वो भी हम बताएंगे। ठीक है, आपका मॉडल है, आप हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर करो, सब कुछ शेयर करो, ताकि कल को आप यहाँ से चले भी जाते हो तो हमें चाइना वालों को गाड़ी बनानी आती हो। ऐसा नहीं है कि आप आए, आपने अपनी गाड़ियां यहाँ बेची, प्रॉफिट कमाया और आप चले गए और हमें तो कुछ पता ही नहीं चला कि गाड़ियां बनती कैसे हैं। ठीक है, तो दे एंटर इनटू दीज टाइप ऑफ जॉइंट वेंचर्स जहां पे उनको पता है कि जैसे जो चाइनीज फर्म्स हैं उनके पास अपने कुछ हथियार है। ठीक है, वो उनको आराम से गवर्नमेंट की क्लियरेंसेस दिलवा देंगी। ठीक है, लैंड आराम से मिल जाएगा, लोग आराम से दिलवा देंगी काम करवाने के लिए, मशीनरी वगैरह सब कुछ आराम से हो जाएगा। बदले में दूसरी फर्म को क्या फायदा, लाइक चाइनीज फर्म को क्या फायदा, उनको सीखने को मिल जाएगा कि ये जो फॉरेन फर्म है क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, इनकी क्या स्ट्रैटेजीज हैं। ओके, हाउ डू दे प्ले, हाउ आर दे एबल टू बिकम सच अ बिग प्लेयर। तो वो अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं कल को जब वो जॉइंट वेंचर एंड हो जाएगा। तो इस तरह से यू नो यू ट्राई टू एंटर इनटू स्ट्रैटेजिक अलायंसेस। सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड वे। फाइन, then after that we have this third stage of financing, which is called as later stage or expansion stage or long term or short term financing, कुछ भी कह लो इसको। ठीक है, now look, as you can see that this stage is also known as bridge stage, mezzanine stage or the expansion stage. Generally funding is done via debt route, long term debt, short term debt और working capital debt. देखो बेटा, पहले दो जितने स्टेजेस में हमने बात की थी वहां पे इक्विटी फाइनेंसिंग के बारे में बात हो रही थी, वहां कहीं डेट के बारे में बात नहीं हो रही थी। अगर डेट था भी तो कन्वर्टेबल डेट था, मतलब डेट को शेयर्स में कन्वर्ट करना पड़ता। यहाँ पे हम किसके बारे में बात करें? यहाँ पे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इक्विटी शेयर कैपिटल, नाउ वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट डेट, वी आर टॉकिंग अबाउट डिबेंचर्स, लोन्स, व्हाटएवर। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हम फाइनेंसिंग इशू करने की कोशिश कर रहे हैं, इट इज वाई डेट फाइनेंसिंग। या फिर अगर डेट फाइनेंसिंग बिल्कुल ही नहीं मिलता तो हम कन्वर्टेबल डेट इशू करेंगे, आप प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू कर सकते हैं। ठीक है, now look, generally you know, under this phase what do you want to do? You basically want to retain control over the business. तभी आप इक्विटी शेयर कैपिटल इशू नहीं कर रहे हो और आपको पैसा चाहिए वो अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए, दैट इज व्हाई यू आर गोइंग फॉर डेट फाइनेंसिंग। अगर आप इक्विटी इशू करोगे तो आपका स्टेक चला जाएगा। ठीक है, आपका जो ओनरशिप कंट्रोल है वो कम होता जाएगा, तो आपको वो नहीं चाहिए। आप चाहते हो आपका कंट्रोल रहे बिजनेस में, साथ ही साथ पैसा भी मिले आपको। सो यू नो वी गो फॉर डेट फाइनेंसिंग। अब डेट फाइनेंसिंग देखो कहाँ कहाँ से आ सकता है आपके पास डेट फाइनेंसिंग।
लुक डेट फाइनेंसिंग, अच्छा डेट फाइनेंसिंग के बारे में पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए. यू मस्ट बी नोइंग कि जब भी आप कभी आप डेट लोगे तो आपको उसको रीपे बैक करना पड़ेगा. इक्विटी शेयर कैपिटल को रीपे नहीं करना पड़ता, बट डेट को हमेशा रीपे करना पड़ता है. प्लस देर इज अ फिक्स्ड ऑब्लिगेशन इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट दैट डेट कैरीज. फाइन. नाउ व्हाट ऑप्शंस कैन यू गो फॉर? यू कैन गो फॉर टर्म लोन्स. अभी टर्म लोन्स क्या होते हैं बेटा? टर्म लोन्स आर नथिंग बट दीज आर लाइक प्रोजेक्ट लोन्स, which are given for setting up a new unit or for expansion of existing units, okay, or for acquiring fixed assets. ठीक है. तो इन पर्पसेस के लिए जनरली दिया जाता है. जो इंटरेस्ट रेट है इसके ऊपर वो फिक्स्ड हो सकता है या फ्लोटिंग हो सकता है. फिक्स्ड का मतलब ये होता है कि पूरे लाइफ टाइम एक ही रहेगा, और फ्लोटिंग का मतलब ये होता है कि जैसे इकोनॉमी ऊपर नीचे होगी उसके हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट भी ऊपर नीचे होता रहेगा. ठीक है. तो दिस इज वन ऑप्शन. देन द अदर इज बैंक्स एंड अदर कमर्शियल लेंडर्स. अब देखो इसके अलावा आप और कहाँ जा सकते हो? देखो आप बैंक्स के पास जा सकते हो लोन लेने के लिए. ठीक है, लाइक अ नॉर्मल लोन, बट यू विल हैव टू गिव सम सॉर्ट ऑफ कोलैटरल in this case, okay, and then only they will give you a loan. या फिर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जा सकते हो, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. यू हैव आईडीबीआई एंड आईसीआईसीआई एंड ऑल दोज फंड्स आर देयर. ठीक है, उनके पास जा सकते हो, वो आपको पैसा दे सकते हैं. देन यू हैव नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. लुक व्हाट यू हैव, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी होती हैं जो डायरेक्टली बैंकिंग में इन्वॉल्व नहीं होती, बट जो बाकी चीजों में इन्वॉल्व होती हैं. तो बहुत बार क्या होता है कि आपको वहां से भी लोन जो है वो मिल जाता है. ठीक है, बट ये ध्यान रखना कि जो एनबीएफसीज है, जो लोन जो है वो थोड़ा सा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देती है देन दी नॉर्मल एजेंसीज. ओके. देन यू कैन गेट लोन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑल्सो. आजकल गवर्नमेंट भी लोन दे देता है. आपने देखा ही आजकल इतनी सारी स्कीम्स आ गई हैं जहाँ पे गवर्नमेंट कह रहा है कि 5-10 साल के लिए लोन लो, बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम लोग देंगे, and then you can give it back to us. Then you can have loan for working capital. अब बेटा इसमें देखो लोन ना यहाँ पे दो तरीके का था. ऊपर जो हम लोन के बारे में बात कर रहे थे दैट वाज मोर फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेस. ओके. अगर लोन हमें शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए चाहिए, मतलब सिर्फ 1 साल से कम के लिए हमें लोन चाहिए, तो उस केस में हम लोग क्या क्या ऑप्शंस यूज कर सकते हैं? वी हैव अ बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और क्रेडिट लाइन, जिसको हम पॉपुलरली क्रेडिट लाइन भी कहते हैं. तो इसमें ये होता है कि आपका जो बैंक बैलेंस है वो नेगेटिव में जा सकता है, मतलब आप विड्रॉ ज्यादा कर सकते हो देन द बैलेंस दैट यू हैव इन योर अकाउंट. ओके. तो उस पर आपको 1 या 2% जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट, उससे थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए. सो दैट इज वन ऑप्शन. सेकंड इज शॉर्ट टर्म लोन. आप शॉर्ट टर्म लोन के लिए जा सकते हो. बैंक्स जो है वो जनरली आपको इजीली दे देते हैं. ठीक है. एंड इसके लिए कोई सिक्योरिटी वगैरह की भी एसेट्स कोई जरूरत नहीं होती, बट यू शुड हैव अ गुड क्रेडिट हिस्ट्री विद द बैंक. फाइन. सेकेंड इज अकाउंट्स रिसीवेबल लोन. अकाउंट्स रिसीवेबल लोन में क्या होता है? देखो बेसिकली जो आपके अकाउंट्स रिसीवेबल है, मतलब जो आपके डेटर्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी आपको लोन मिल जाता है, क्योंकि डेटर्स आपको कभी ना कभी तो पैसा देंगे ना. तो बैंक क्या करती है? बैंक उसकी वैल्यू देखती है और कहती है कि इसका मानो 60 या 70% के बेसिस पे हम आपको लोन दे देते हैं. ठीक है, क्योंकि वो पैसा आपको आएगा ही आएगा, तो जब पैसा मिलेगा आप हमें वापस रीपे कर देना. ये तो उठ के देते तुमको. Then you have factoring or advances. Now look, this is also similar to your accounts receivable loan. The only difference is that instead of confirm order or account receivables, the value of loan is based on future credit receipts. अब यहाँ पे debtors के ऊपर based नहीं है. इसका यहाँ पे जो हमारा loan है that is based on the future credit inflow that we are expecting out of any project. ओके. तो मानो आपने जैसे मेट्रो के लिए लोन लिया. अब आपको पता है कि ऑन एन एवरेज अगर हम मेट्रो निकालते हैं, ठीक है, तो मेट्रो से मुझे पता है कि ऑन एन एवरेज ही दिल्ली के 6 लाख लोग तो चढ़ेंगे ही चढ़ेंगे. ठीक है, ट्रैवल करेंगे ही करेंगे. तो फ्यूचर क्रेडिट रिसीट्स को भी आप एक बेसिस मान के यू कैन गिव लोन्स लाइक दैट. ओके. देन यू कैन हैव ट्रेड क्रेडिटर्स. फिर क्रेडिटर्स जो हैं वो भी आपको अगर क्रेडिट फैसिलिटी दे देते हैं कि सामान ले जाओ क्रेडिट पे या बल्क में ले जाओ, दैट इज अगेन अ फॉर्म ऑफ लोन. Okay, and then one more method is there, that is lease, whereby you can just pay some amount like some rent, and then you can take resources for use like machinery, land, building, etc. Fine. After that we have the fourth stage of financing, that is the public offering stage or the secondary market stage. बेटा इसमें क्या होता है? इसके अंदर ना आप क्या कर रहे हो? अब आप
सब कुछ कर चुके हो, ठीक है, आपने इक्विटी भी कर लिया, आपने डेट भी कर लिया, अब आप क्या करो, आप कह रहे हो दैट वी हैव ग्रोन वेरी बिग, वी आर अ वेरी बिग एंटरप्राइज नाउ, सो लेट अस टैप द स्टॉक मार्केट नाउ एंड लेट अस लॉन्च एन आईपीओ। बट आईपीओ क्या होता है, आईपीओ और एफपीओ में फर्क ये होता है, जब कोई कंपनी पहली बार अपना अपना प्रोस्पेक्टस या शेयर इशू लेके आती है मार्केट में, ठीक है, तो उसको इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं। अगर वो दूसरी बार लेके आती है तो उसको दूसरी तीसरी चौथी जितनी बार भी लेके आती है, देन इट इज कॉल्ड अ एफपीओ। फाइन। नाउ let us just quickly read it out. Look, IPO is a process where an unlisted company sells new or existing securities for the first time, like I told you. ठीक है, तो जब आप एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे जाते हो, आप पब्लिक जा रहे हो, पहली बार आप पब्लिक जा रहे हो, तो उसको हम आईपीओ कहते हैं। ठीक है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर क्या होता है? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर मींस दैट द कंपनी इज ऑलरेडी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज एंड देन यू आर गोइंग अगेन टू द इन्वेस्टर्स टू give you money, then that becomes an FPO. ओके, डिफरेंस बेटा आप खुद देख लेना, राइट इशू ऑफ शेयर्स पे और आ जाते हैं। राइट इशू ऑफ शेयर्स किसके लिए होता है? ये सारी पब्लिक के लिए नहीं होता, ये सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए होता है। तो हम वहां पे उनको एक ऑप्शन देते हैं कि मानो आपके पास 4 शेयर्स हैं, तो आपको 4 शेयर्स के बदले में हम 1 शेयर देंगे, and let us say the market price of the share is 1000 rupees, but we will give you at a cost of 800 rupees. तो इस तरह से करके हम लालच देते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कि वही हमें पैसा दे दें। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज अ राइट्स इशू। फाइन। Now let me just quickly come to this next thing, that is marketing and technology assistance that we need to have. Now look, whenever we talk about this marketing, it is very important for any firm to do marketing research, okay, when you are deciding to enter into the market. तो देखो मार्केट रिसर्च क्यों इम्पोर्टेंट है? देखो मार्केट रिसर्च इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको ये पता चलता है कि क्या कस्टमर का प्रोफाइल है, जो कस्टमर आ रहा है वो किस एज ग्रुप का आ रहा है, क्या सोच के आ रहा है दिमाग में, उसकी नीड्स क्या है, ठीक है, उसकी इनकम क्या है। तो हाँ, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए बिफोर यू डिसाइड टू एंटर इनटू एनी मार्केट। नाउ लुक, अभी इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके लिए कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स है, लाइक मेन तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, रेलिवेंट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। अब देखो ऐसे तो आप कुछ भी तुक्का लगाते रहो, आप बोलो कि दिल्ली में तो आ जाओ, कोई भी प्रोडक्ट बिक जाएगा, लोगों के पास बहुत पैसा है, बट ऐसे नहीं होता ना। यू नीड टू हैव सम डॉक्यूमेंट, okay, which proves that these many people are, let us say, you decide to sell a car worth 6 crore rupees in Delhi. Okay, आपको पहले रिसर्च करके देखो तो कि कितने लोग हैं जो जिनके पास इतने पैसे हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो कहाँ से शॉपिंग करना प्रेफर करेंगे ऐसी गाड़ी की, कहाँ पे आपको स्टोर खोलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आपको कलेक्ट करना जरूरी है। देन टाइम फ्रेमवर्क, देखो ऑब्वियसली बात है, टाइम लुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मानो आप भी एंटर करने का सोच रहे हो 6 करोड़ की गाड़ी के साथ, और कोई और बंदा है वो भी एंटर करने का सोच रहा है with that so much expensive car only। तो अब आपको ये देखना है कि आपका क्या टाइमिंग है, क्या आपने बेटर टाइमिंग पे अगर मार्केट में आप आ गए हो, ठीक है, और राइट कस्टमर्स आपने अट्रैक्ट कर लिए, तो ऑब्वियसली यू कैन सर्वाइव इन द मार्केट। देन व्हाट आर द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड? ऑब्वियसली बात है, अब आप कहीं और जाके किसी और टेरिटरी में जाके कस्टमर्स एक्वायर कर रहे हो, तो क्या क्या रिसोर्सेज आपको चाहिए होंगे, कहाँ पे स्टोर बनाओगे, क्या फिजिकल रिसोर्सेज चाहिए होंगे, क्या फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए होंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे चाहिए होंगे, मैनेजर कौन होगा, एम्प्लॉयज कैसे होंगे। तो उस सब के लिए भी आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी कि किस तरह के लोग आपको चाहिए। ठीक है, then you need to do a cost benefit analysis as well। ठीक है, now let us say you have a very good idea in the mind and everything is there, but your costs are very high and the benefits are not there, revenue दिख नहीं रहा आपको। तो before leaping in, if you do a market research, तो आप बच सकते हो, आपको पता चल सकता है कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। फाइन, और फिर ये कस्टमर्स के बारे में तो आपको ऑब्वियसली बताते ही बताता है। फाइन, okay, now after that we talk about this marketing assistance. Now look, it says like this very famous there is this tagline that customer is the king. Okay, and every organization at the end of the day wants to serve and satisfy the customer. Okay, everything is with the customer. So for serving the customer, you need to have the right set of products, you need to know the right marketing activities, and then you need to approach the customer. Okay, uh, uh, देखो, आप मानो आपके पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपको लग रहा है वो मार्केट नीड्स, उसकी सारी नीड्स सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है, बट अगर कस्टमर को पता ही नहीं आपके प्रोडक्ट के बारे में, फिर
ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक फर्म का के लिए कि वो मार्केटिंग अच्छे से करे अपने प्रोडक्ट की, मतलब जहां पे वो यूजर उस प्रोडक्ट को ढूंढ सकता है वहां पे आपकी प्रेजेंस रिक्वायर्ड है, वहां पे आपको उसको वो इन्फॉर्मेशन देनी है दैट या वी आर देयर इन द मार्केट एंड यू नो वी कैन हेल्प यू विद दिस। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू मार्केटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो बेटा इस काम के लिए बहुत बार होता है कि एंटरप्रेन्योर्स खुद करते हैं, अदरवाइज ये काम जो है वो किसी मार्केटिंग एजेंसी को लेंड आउट कर देते हैं। ठीक है, अब अगर आपने किसी मार्केटिंग एजेंसी को दिया तो उसका फायदा क्या है मार्केटिंग एजेंसी को देने का? तो देखो, फर्स्ट इज एक्सपर्टीज ना, ऑब्वियस सी बात है, यू नो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ मार्केटिंग एजेंसी दे आर गोइंग टू बी एक्सपर्ट इन द फील्ड। ओके, दे विल हैव अ डेडिकेटेड टीम ऑफ एक्सपर्ट्स। आप उनको बोलो ऑनलाइन मार्केटिंग करनी है, उनको सब आएगा। आप बोलोगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना है, उनको वो आएगा। आप बोलोगे टीवी पे एडवर्टाइजमेंट करना है, एड बनाओ, उनको वो आएगा। कहाँ पे कौन से टीवी चैनल्स पे एडवर्टाइज करना चाहिए उनको पता होगा। ओके, सो दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज लाइक दैट। Then experience. Now look, marketing is nothing that you know which can be learned in one day. Marketing is a long term game. People learn you know via years. तो तो देखो, आपको मे बी एज एन एंटरप्रेन्योर आपके पास इतना टाइम नहीं है, या आपको पता ही नहीं है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या यूज हो रही है या क्या नए ट्रेंड्स आ रहे हैं मार्केटिंग के अंदर। तो इसके लिए स्टार्टअप्स जो है वो बहुत बार मार्केटिंग के लिए असिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, देन इट सेव्स कॉस्ट। ऑब्वियस सी बात है, आप एक प्रोफेशनल को एम्प्लॉय कर रहे हो, बट यू नो इट ही विल टेक मनी, बट यू नो द एफर्ट्स दैट यू विल पुट इन, और यू नो अगर आप खुद ये काम करते और आपका जितना खर्चा होता है उस काम करने में, उससे आपको तब भी ये सस्ता ही पड़ेगा, क्योंकि द प्रोफेशनल इज गोइंग टू ऑपरेट एट अ lower cost because he's obviously you know having so many customers at the same time. Then you have this thing which is called as creating marketing space. Now look, creating marketing space का मतलब क्या है? Just okay, now creating marketing space का मतलब क्या है? That you know basically you know these marketing firm by using their resources, network and knowledge, okay, they help this startup to create a niche market for themselves. ठीक है, तो ये क्या करती है बेसिकली, आपको इनको पता है कि हाँ यहाँ पे कस्टमर्स आते हैं, और वो वहीं पे आपके प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करेंगे और आपको कस्टमर्स लाने में हेल्प करेंगी। ठीक है, इससे आपका कंपटीशन भी फाइट होगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है, और आप पोटेंशियल कस्टमर्स को अट्रैक्ट भी कर पाओगे। ठीक है, एंड देन ऑब्वियसली दे डिलीवर रिजल्ट्स। ओके, तो you know they obviously have you are paying them. Okay, so you will pay them only when once you know you see that they are giving you results. So they definitely have this thing in mind that you know whatever is your vision and whatever is your objective, they are able to meet that vision and objective. ठीक है, नाउ एग्जांपल्स ऑफ मार्केटिंग एजेंसीज इन इंडिया। अब कौन सी ऐसी मार्केटिंग एजेंसीज है, एक आधी मार्केटिंग एजेंसीज भी पता होनी चाहिए। सो वन इज द स्टार्टअप कैफे। Now, this is one of the leading marketing agencies in Bangalore, which provides content and social media solution to startups and helps to and you know it basically helps them to achieve their marketing goals. तो इनका मेन जो चीज रहती है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, वेब एनालिटिक्स, इन सब पे रहती है। ठीक है, तो अगर आपको सोशल मीडिया का पे अपने आप को यू नो आपका प्रेजेंस एस्टैब्लिश करना है, आपने कोई ऑनलाइन वेंचर खोला है एंड यू नो यू वांट कि उसका ऑनलाइन प्रेजेंस अच्छा होना चाहिए, तो स्टार्टअप कैफे इज वन ऑफ दोज यू नो हु कैन असिस्ट यू विद द सेम। देन द नेक्स्ट इज केक्सिनो। अब ये केक्सिनो भी इसी तरह की एक मार्केटिंग असिस्टेंस फर्म है जो कि बेसिकली स्मॉल फर्म्स को केटर करती है। ठीक है, ये बेसिकली कंटेंट आपको देती है, वेबसाइट डिजाइनिंग में हेल्प करेगी, कंटेंट बनाने में हेल्प करेगी कि एड अगर बनाना है या कुछ कंटेंट बनाना है तो वो कैसे बनेगा, उसको प्रोड्यूस करवाएगी, एडवर्टाइजिंग में हेल्प करेगी आपकी। तो इन सब चीजों में वो है। ठीक है, so it is not into social media marketing or anything, but it is you know a little different. तो ये डिपेंड करता है कि आपका क्या गोल है, उसी हिसाब से आपको अपनी मार्केटिंग एजेंसी जो है वो चूज करनी पड़ेगी। ठीक है, now just give me 1 minute. Fine. Okay, so now look, it says that how do I know that you know I should go for marketing assistance or not? अब मैं तो entrepreneur हूँ, मैं कैसे decide करूँ कि मुझे ये काम खुद करना चाहिए या बाहर की से कि आप बाहर की किसी कंपनी से कराना चाहिए? तो देखो, it says that the first thing is that if you are deciding to expand, ठीक है, that means you know you want to explore other verticals in your business, okay, and you want to spend more time looking
on the important aspects of your business rather than routine nature things like marketing, then in that case you should seek help of these professional agencies. Fine. And apart from that, you can even go for them when you think that you lack in-house expertise. अब मानो आपके पास आपने entrepreneur venture निकाल लिया, सब निकाल लिया, बट आपके पास कोई मैनेजमेंट टीम में आपको कोई दिख ही नहीं रहा जो मार्केटिंग हैंडल कर पाए. यू कांट हायर एनी गुड पर्सन आल्सो फॉर द सेम. तो अगर आपको दिख रहा है कि that the organization, let us say, it needs some help in the form of maybe presence on the social media, or or on the TV or in the newspapers, or whatsoever way you need help. Okay, so one of the good things to go for is for these experts, because आपकी जो in-house expertise है वो ये काम नहीं कर पाएगी. ठीक है, तो बेटर है कि आप ये काम दूसरी एजेंसी से कराओ. देन रेलिवेंट स्ट्रैटेजीज. अब देखो बहुत बार क्या होता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स जो है वो बहुत अच्छी मार्केटिंग कर रहे होते हैं, और आपको पता है कि आप चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो, आप कॉम्पिटिटर जितनी अच्छी मार्केटिंग नहीं कर सकते हो. ठीक है, एंड लेट अस से यू आर अ स्टार्टअप इन दैट फील्ड. सो इन दैट केस, टू गिव यू अ गुड फुटिंग इन द मार्केट, इट्स बेटर टू गो फॉर दीज मार्केटिंग एजेंसीज. अगर कोई कॉम्पिटिटर नहीं है तो अच्छा, तो हाँ, तो खुद भी कर सकते हो. बट अगर कोई बहुत अच्छा कॉम्पिटिटर है और आप एक स्टार्टअप हो जहाँ पे आपको उसको कॉम्पिटिशन देना है या कुछ करना है, तो इट्स बेटर टू गो फॉर अ मार्केटिंग एजेंसी. देन थर्ड इज स्टैग्नेशन इन दी बिजनेस. नाउ लुक, अगर आपने मानो आप खुद बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हो मार्केटिंग करने की, ठीक है, और तब भी कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे, यू थिंक योर प्रोडक्ट इज गुड, एवरीथिंग इज गुड, ओके, योर मार्केटिंग, योर प्रोडक्ट स्ट्रेटजीज आर गुड, okay, you're distributing it in a good way, everything is going fine, okay, but your marketing is not happening in the right way. That means your product is not available where the customer wants the product, okay, or maybe somebody else is able to convince them for a poor quality product though you have a better quality product. तो अगर इस तरह की कोई चीज है, then in that case you can go for some outside help, because they are definitely going to help you in this scenario. Fine. Just give me 1 minute. Okay. Apart from that, if you see that the government of India is also helping to do the same. The government of India hai, under its Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise. Okay, it has launched a program that works towards promoting marketing assistance scheme. ओके, तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ मार्केटिंग असिस्टेंस ही नहीं देते हैं, बल्कि अच्छी टेक्नोलॉजी भी देते हैं ताकि इनके एक्सपोर्ट्स इंप्रूव हो स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स के. ठीक है, तो द मिनिस्ट्री इज आल्सो हेल्पिंग दीज डेज. द गवर्नमेंट हैज इट्स ओन पोर्टल आल्सो नाउ, जहाँ पे ये लोग स्टार्टअप्स वगैरह के प्रोडक्ट्स जो है वो डिस्प्ले करते हैं और सेल करने में भी हेल्प करते हैं. फाइन. Then next we have is role of technology. Okay, now look, technology is again a very important thing when you come to working of a business. Okay, any business operation you talk about is significantly affected by technology. Like अगर आप पैंडेमिक की बात करो, पैंडेमिक में किसी ने नहीं सोचा था कि टेक्नोलॉजी इतना बड़ा रोल प्ले करेगी. जो क्लासेस हम फिजिकल मोड में लेते थे, फेस टू फेस मोड में लेते थे, nobody would have thought that everything would be going online. We will be using platforms like Google Meet and Zoom and Microsoft Teams to deliver all these things. Similarly, it was a very big shift for businesses as well. Businesses, they went totally online. Okay, all their meetings, whatever they wanted to do, in fact that is still being operated from work from home only. Okay, तो जो चीज पहले हमें लगता था कि हो ही नहीं सकती है, वो टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हुई है. and in fact a lot of businesses have been able to survive only on the basis of technology. Fine. तो टेक्नोलॉजी देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली विद कमिंग अप ऑफ द पैंडेमिक. टेक्नोलॉजी हैज अ वेरी वेरी बिग रोल टू प्ले नाउ. फाइन. सो नाउ लुक, व्हाट हैपेंस इज दैट अगर हम वैसे नॉर्मली बात करें, अगर ये पैंडेमिक नहीं होता, अगर तब बात करें, तो देखो अगर आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ना, तो आपके पास एक कॉम्पिटिटिव एज है, okay, over whosoever is operating in the market. Why? Because if you have the latest technology, what will happen, you will be able to produce better quality products and you will be able to sell them at a probably then at a lower price. ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हम तभी सुपीरियर टेक्नोलॉजी का मतलब ही यही होता है कि या तो हमारा आउटपुट में हेल्प करे या फिर हमें पैसे में हेल्प करे, एज एन हमारे प्रोडक्ट को प्रोडक्ट का प्रोडक्शन जो है वो सस्ता करवा दे. ठीक है,
तो फाइनेंशियल गेन्स तो आता ही आता है. उसके अलावा व्हेन यू हैव दिस टेक्नोलॉजी थिंग, then in the industry also there is this culture of innovation and emulation. Why? Because look, once you get this new technology, automatically your competitors, they see that you are making good profits, so even they would want to get the same technology from somewhere. Okay, even they will have it. So ultimately you will see that in a very short span of time that all the businesses will be having that technology, and then it basically leads to a culture जहाँ पे सब लोग अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करके अच्छे रिजल्ट्स देते हैं. जैसे आपने सुना होगा सिलिकॉन वैली इन द यूएस. ओके, वहाँ पे सारी अच्छी फर्म्स हैं लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल. सारी की सारी बड़े बड़े जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, उसका वो हब है सिलिकॉन वैली. क्यों है? क्योंकि वहाँ पे इनोवेशन बहुत ज्यादा है. वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है दैट इज लाइक ए ग्रेड. उससे अच्छी टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में कहीं कोई यूज नहीं कर रहा. जितना ब्रेन वहां पे है उतना कहीं पे भी नहीं है ऑल ओवर द वर्ल्ड. ओके, though it's very important for any business to adopt advanced technology, and it obviously gives you some benefits also. So what are the benefits? Let us just see. So first is better communication with customers. Now look, technology से होता क्या है? Look, you can अगर आज की बात करें तो you can have better communication with the customers. Okay, you can share detailed information through your website. You can resort to online platforms and you can connect with prospective customers. You have this online chatting thing over there whereby the company's executives are available in case you have any doubts. तो इससे क्या होता है कि बहुत ही जल्दी और ओपन कम्युनिकेशन होता है विद द एंड कंज्यूमर्स. सो इट इज सेइंग लाइक, देखो आजकल कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो देखो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर हैपनिंग ऑनलाइन नाउ. Okay, so if you have to communicate with the customers, the best way is what you do these days. You send emails, you send messages, you tell the people. तो जब आप ये सब काम कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप बेसिकली टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो. ठीक है. सिमिलरली लेट अस से अ पर्सन हैज कम टू योर वेबसाइट एंड ही डज नॉट नो कि आपकी वेबसाइट पे क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या है, उसको क्वेरीज है. तो आप क्या कर सकते हो? आप नीचे चैटिंग का या हेल्प बॉक्स का फंक्शन दे सकते हो जिसके अंदर वो आके अपनी क्वेरी डाल सकता है एंड यू कैन इंस्टेंटली रिजॉर्ट टू दैट क्वेरी. ओके, एंड यू कैन हेल्प हिम प्रोसीड with the purchase. Okay, तो इस तरह से क्या हो रहा है? There is better communication with the customers. Okay, you can easily tell the customers that what your website is about, why they should shop from your website, and you can host all those things. जैसे नायका के बारे में बात करें तो नायका पहले ही बोलती है कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो जेन्युइन है. So you don't need to worry. In case any of the product is duplicate, we will directly refund you the entire amount. ओके, तो उन्होंने अपने आप को बिल्कुल ऐसा मार्केट में पोजीशन किया हुआ है कि सबको पता है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट वहां से खरीद रहे हो तो वो डेफिनेटली ऑथेंटिक होगा ही होगा, जो कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है फॉर एवरीथिंग. ओके, प्लस उन्होंने वो चैटिंग का फंक्शन दिया हुआ है वहां पे. ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट्स है या कुछ है तो आप ऑटोमेटिकली बात कर सकते हो. कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन देते हैं, आप कॉल करके पूछ सकते हो एंड ऑल दोस थिंग्स आर देयर. Then strong public image. Now look, these days people, they like firms which are technologically advanced. Why do we love Apple? एप्पल से हमें इतना प्यार इसीलिए है क्योंकि हमें पता है कि टेक्नोलॉजी के टर्म्स में एप्पल से ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता. चाहे वो फोन्स हैं, चाहे वो ईयरपॉड्स हैं, चाहे वो वॉच है, चाहे वो लैपटॉप है. ओके, देयर इज जस्ट नो कंपटीशन टू इट एट ऑल. ओके, तो देखो, एक तो ये चीज हो गई कि एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक इमेज बनती है आपकी. उसके अलावा और क्या होता है? देखो, आजकल अगर आप बात करो तो देखो, आप इन पोर्टल्स के थ्रू अपने ये जो वेबसाइट्स वगैरह हैं उनके थ्रू अपनी एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक इमेज बना सकते हो. ठीक है, तो जैसे अमेजोन के बारे में बात करें तो अमेजोन जो है वो डोर टू डोर डिलीवरी दे रहा है, रिफंड भी दे रहा है, एक्सचेंज भी दे रहा है, और वो साथ ही साथ एनवायरमेंटली कॉन्शियस भी है. उसने अपने जो उसके B2B पार्टनर्स है उनको बोल रखा है कि जो भी मटेरियल आप यूज करोगे, यू नीड टू इंश्योर दैट इट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली. प्लास्टिक यूज नहीं होना चाहिए उसके अंदर. ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें उसने बताई हुई है. तो गत्तों के अंदर आता है विच कैन इजीली बी डिस्पोज्ड ऑफ. प्लास्टिक के अंदर नहीं देते वो प्रोडक्ट्स, कम से कम यूज करने की कोशिश करते हैं प्लास्टिक की. तो इस तरह की चीजें जो है वो आ गई हैं. ठीक है, तो हाउ इज Amazon एबल टू डू ऑल दीज थिंग्स ना, कि आपने आज ऑर्डर प्लेस किया और आज ही आपकी डिलीवरी हो रही है प्रोडक्ट की. दिस इज समथिंग which is phenomenal. Similarly, in the medicine sector, you are seeing that this thing is coming, that you just order the medicine and within 2 hours it is going to be at your doorstep.
Okay, similar things are happening on Grofers and all these others apps. So that is happening. Right? The technology is becoming so advanced that the things that we used to imagine 2 years back are actually happening now. Fine. देन एफिशिएंसी इन बिजनेस ऑपरेशंस, ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर आप ऑनलाइन जाओगे तो आपकी एफिशिएंसी तो बिजनेस में इंक्रीज होगी ही होगी। जैसे अभी हमने बात की अमेजोन की, तो सेम डे डिलीवरी की अगर आप बात करो, ठीक है, तो इट्स अगेन अ वेरी गुड थिंग। फिर और कैसे एफिशिएंसी आती है, मानो आपको किसी के साथ यूएस में मीटिंग करनी है, तो अब वो जमाने गए कि आप फ्लाइट लेके यूएस जाओगे और मीटिंग करोगे। आजकल तो अगर किसी के साथ भी मीटिंग करनी है तो इट्स जस्ट अ 1 minute थिंग, यू विल से I have to have a meeting at 1:45. You will just press the Zoom ka link and you will send it to the person and you can do a meeting with him. It's like so cost effective also ना, and it is saving people's time. तो और बड़ा quickly decision भी आप ले सकते हो। तो सब कुछ ऑनलाइन जाने की वजह से या टेक्नोलॉजी की वजह से हमें बहुत बेनिफिट्स हुए हैं। ठीक है, कंपनीज ने अपनी कॉस्ट कितनी कम कर ली है in this pandemic only. You will see that so many companies are saying that they are able to cut 40-50% of their costs just because employees are working from home. Fine. तो बहुत savings भी हो रही हैं, and people have reported, like there are many businesses who have failed as well, but yeah, if you talk about most of these businesses who were especially in the technology sector, they have done like a mind boggling kind of a thing. Okay, बहुत अच्छा काम किया है and they have experienced tremendous success. देन meteoric ग्रोथ ऑफ ऑनलाइन बिजनेस। अब देखो स्पेशली विद कमिंग अप ऑफ द पैंडेमिक, ऑनलाइन बिजनेस तो एक रियलिटी बन गया। अगर आज हमें एक सुई भी चाहिए तो हमें ये लगता है ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं, कौन जाएगा ना, क्यों बाहर जाना, अपने आप को एक्सपोज करना, और कहीं कुछ हो जाए। तो एवरीबडी थिंक्स दैट घर पे बैठे बैठे आ जाए, हमें बस घर से बाहर निकलना ही ना पड़े। So whether it is Swiggy, Food Panda, Urban Clap, whatsoever, you talk about Dunzo, and you must be having so many other portals in mind. Even for online education, we have like Byju's and so many other things have come up. तो जो ऑनलाइन बिजनेस है उसकी बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है, स्पेशली ड्यूरिंग द पैंडेमिक, तो बहुत ही ज्यादा ग्रोथ हुई है। ठीक है, देन नेक्स्ट थिंग इज, लुक व्हेन यू टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी ना, इट कम्स विद अ फ्लिप साइड एज वेल, व्हिच इज सिक्योरिटी। ओके, तो देखो आप जा तो रहे हो ऑनलाइन, बट यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल दैट about the customer's personal information, like his bank account details, passwords. You need to ensure that they're very nicely encrypted, and your technology is such that it protects the personal details of the customers. क्योंकि देखो एक बार ब्रीच हुआ तो the trust is lost forever. Then the customer is not going to come to your website forever, and if other people get to know about it, even they are not going to transact on your website, because this has become like a game changer these days. Security तो बहुत ही बड़ी चीज हो गई है। ठीक है, तो सिक्योरिटी आपका प्राइम काम है कि अगर आप टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हो तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए, पर्सनल डेटा जो है वो कहीं नहीं जाना चाहिए। फाइन, देन नेक्स्ट इज रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड कीपिंग हैज बिकम वेरी इजी। ठीक है, विद टेक्नोलॉजी कितना ही ह्यूज enormous amount of data running into lakhs of pages, it can be easily maintained, there is no problem. Then there is enhanced learning। ऑब्वियसली बात है, टेक्नोलॉजी के थ्रू तो अब लर्निंग आपने देखा ही है कितनी ज्यादा हो गई है। ठीक है, आप आराम से आजकल वैसे कंपनीज भी प्रमोट कर रही हैं, वो अपने एम्प्लॉयज को बोल रही है दैट यू लर्न दी न्यू थिंग्स दैट आर कमिंग अप इन दी मार्केट, लर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लर्न कोडिंग। आजकल बच्चों को बोला जा रहा है कि आप कोडिंग सीख लो। ठीक है, तो ये क्यों किया जा रहा है, बिकॉज आगे जाके हमें ये दिख रहा है कि टेक्नोलॉजी के बिना जो है हम सर्वाइव शायद नहीं कर पाएंगे। then open door to vast market, obviously बात है, अगर आप ऑनलाइन चले गए हो तो then the whole world is your market space, sitting over here you can sell anywhere in the world. then artificial intelligence, again like I told you, आजकल जनरली हो क्या रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने बिजनेसेस को ऑटो पायलट मोड पर डालना चाहते हैं। ऑटो पायलट का मतलब क्या होता है कि वहां पे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके प्रोसेसेस को इस तरह से ऑटोमेट करते हैं कि ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम हो, और जो बिजनेस है वो रियल टाइम बेसिस पे ही ऑपरेट ज्यादा कर ले। ठीक है, देन इट इज हेल्पफुल फॉर फर्म इन R&D एक्टिविटीज। फिर R&D के लिए ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर इट इज पेट्रोलियम, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिसिन, किसी के लिए बात करो तो R&D तो टेक्नोलॉजी के बिना हो ही नहीं सकता। ठीक है, देन एक्सपैंडेड आउटरीच, ऑब्वियसली यू कैन, मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, यू कैन रीच अ लॉट ऑफ पीपल
एंड देन देयर इज क्विक डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डिसीजन मेकिंग भी बहुत इजी हो गया है आजकल। बहुत सारी टेक्निक्स हैं आपके पास, लाइक गूगल एनालिटिक्स, माइक्रोसॉफ्ट सीआरएम डायनेमिक्स, जो कि आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, देन यू हैव इज डिजिटल मार्केटिंग। अभी डिजिटल मार्केटिंग तो मुझे ऐसा लग रहा है, आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग व्हाट इज दिस डिजिटल मार्केटिंग। ओके, digital marketing means that you're using your internet basically to sell your products to the consumers. So it can be via mobile phones, it can be via social media, it can be via search engines like Google's, it can be via display advertising. Display advertising means जब आप Google खोलते हो तो यहाँ साइड में एड्स रन कर रहे होते हैं, ऊपर एड्स रन कर रहे होते हैं, तो दैट इज डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। then you know there are other things like search engine optimization, जहाँ पे कोई बंदा कोई प्रोडक्ट सर्च करे तो सबसे पहले आपके कंपनी का नाम टॉप पे आए, तो देर आर टेक्निक्स फॉर दैट। पे पर क्लिक, अगर आप मानो फेसबुक के थ्रू अमेजोन पे जाते हो और कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो फेसबुक का उसका कुछ परसेंटेज कमीशन मिलता है, तो दैट इज पे पर क्लिक। तो ओके, इवन दैट इज देयर। देन ब्लॉगिंग इज देयर, डिस्कशन फोरम्स आर देयर, सोशल मीडिया मार्केटिंग इज देयर। आजकल आप रिव्यूज कितने देखते हो, हर चीज पे पीपल आर डिस्कसिंग, पुटिंग रिव्यूज एंड ऑल दोस थिंग्स आर देयर। So that is digital marketing. I think the benefits of digital marketing also we shall just see it in 2 minutes. Quickly देख लेते हैं इसको। देखो, digital marketing basically offers you the following benefits. First is availability of strategic data and analytics. अब कितने कस्टमर्स मेरी वेबसाइट पे आए, क्या क्या देखा उन्होंने, कितनी देर वो वहां रहे, कितनी देर उन्होंने भ्रमण किया, खरीदा कुछ नहीं खरीदा, क्या पोटेंशियल था और खरीदने का, और क्या देख रहे थे, तो इस तरह का सारा डेटा आपको मिल जाता है। ओके, व्हेन यू टॉक अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, इट इज कंपैरेटिवली कॉस्ट इफेक्टिव। बेटा पूरा स्टोर खरीदना, उसमें एम्प्लॉइज रखना और उसको चलाना, उससे बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है ऑनलाइन प्रेजेंस। ठीक है, इट इज ऑब्वियसली वेरी सस्ता इन कंपैरिजन टू हैविंग ऑल दोस फिजिकल स्टोर्स एंड लेआउट एंड एवरीथिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग इज चीप। ठीक है, देन एबिलिटी टू हैंडल स्टिफ कंपटीशन। अब देखो, स्टार्टअप्स के लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि वो लार्ज बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को भी टक्कर दे रही है। तो जो अमेजोन की और ये फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल है, इसका तो रिलायंस वाले भी कोई मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब ये लोग लगाते हैं अपनी सेल, तो if you have seen the kind of profits that they make, they're like huge profits that they make during those 3-4 days itself. ठीक है, तो they can handle any type of stiff competition. Then survival of growth of online business, आगे तो बेटा growth और survival होना ही online business का, ये तो future ही उसी के अंदर है। And then you have a worldwide presence. Fine. I think with this, I will just end my screen sharing and I will come to your doubts. If you have any doubts, you can post them in the Q&A. It's just loading. Till the time, I will just share my file in the chat box with you people. If you have any doubts, you can post them in the Q&A session. I will be taking them one by one. Okay, it's saying please add me in the group. Can you please? Okay, Abhishek has already shared the groups. Please send all the PDFs so that I can study from that. बेटा मेरे पास जितने PDFs मेरे को दिखे थे, I think मैंने already सारे के सारे ही share कर दिए थे group पे। बाकी मुझे PDFs मिल नहीं रहे हैं। I would suggest you people to buy this book by Dr. Vinita. Okay, and you can refer to it for your notes. I think नाम वगैरह मैं already share कर चुकी हूँ। एक बुक तो आपको खरीदनी पड़ेगी, बाकी मैं एक बार और search करूंगी। मैं WhatsApp ग्रुप पे अगर मुझे कुछ और मिलेगा तो I will definitely share that as well. Fine. So again, a very happy Diwali to all of you. So I think that would be it. So let's end the class. Thank you.